हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री राधे, जय माताजी। सौने करबद्ध प्रार्थना आप आपनु स्थान ग्रहण कर लो। परम पूज्य गुरुजी अत्रे सभा मंडप में पधारी रहा है। जेओ बार छे जेमने चा पाणी पीवाना बाकी छे ते जल्दी थी शीघ्र कथा मंडप में आपनु स्थान ग्रहण करी लो। पूज्य गुरुजी पधारी रहा है। जेम बने तेम जल्दी थी आप आपनु स्थान ग्रहण करी लो, जेथी कथा नो कीमती समय आपणे गुमावવો न पड़े। कथा गुमावे हेलो। श्री सदगुरु भगवान की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। हमारो छोकरो छे हुआ एक भजन करो ત્યાં સુધી પબ્લિક આવી છે कर दो जेवी आज्ञा जेवी आज्ञा। हेलो। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।
श्री हितवं स्वा प्रभु जी की जय। सेवक जू महाराज की जय। मारू मनडू छे गोकुळ वन रावण, मारा तनना आंगणियामा तुलसी नवन, मारा प्राण जीवन मारा घटमा विराजता मारा घटमा रे मारा घटमा विराजता श्रीनाथ जी यमुना जी श्री महाप्रभु जी। मारा घटमा विराजता सब लोग गाइए यमुना जी महाप्रभु जी। मारा आत्मनाया गणेश महाप्रभु जी। मारा आत्मना गणेश महाप्रभु जी। मारा आत्मनाया गणेश महाप्रभु जी। मारा आत्मना गणेश महाप्रभु जी। मारी आँखों दिसे गिरधारी रे धारी, मारी आँखों दिसे गिरधारी रे धारी। मारू तन मन ओ मारू तन मन गयू जैने वारी रे वारी, मारा श्याम मोरारी। मारा घटमा विराजता श्रीनाथ जी यमुना जी महाप्रभु जी। मारा प्राण धकी मन वैष्णव वाला, मारा प्राण धकी मन वैष्णव वाला। हे मारा प्राण धकी मन वैष्णव वाला। मारा प्राण धकी मन वैष्णव वाला। नित्य करता श्रीनाथ जी ने काला रे वाला, करता श्रीनाथ जी ने काला रे वाला। नित्य करता श्रीनाथ जी ने काला रे वाला। करता श्रीनाथ जी ने काला रे वाला। मैं तो वल्लभ प्रभु दीना किधरे दर्शन, मारू मोहिनी तू मन। मारा घटमा विराजता श्रीनाथ जी यमुना जी महा। सेवा रे करो तो आटे समा तेरी झांकी रे करो। श्रीनाथ जी ना चरण धरी जीवन सफल करो। मारा घटमा विराजता श्रीनाथ जी यमुना जी श्री महाप्रभु जी।
केरो संग रे साध्यो અમે તો ભક્તિ માર્ગ કેરો સંગરે સાધ્યો અમે તો ભક્તિ માર્ગ કેરો સંગ રે સાધ્યો અમે તો ભક્તિ માર્ગ કેરો સંગરે સાધ્યો દોડ કીર્તન કેરો રંગ રે લાગ્યો ને ધોળા કીર્તન કેરો રંગ રે લાગ્યો મને દોડ કીર્તન કેરો રંગ રે લાગ્યો ને ધોળા કીર્તન કેરો રંગ રે લાગ્યો એને તો લાલાની લાલાની મેં તો લાલાની લાલી કેરો રંગ રે માગ્યો ફિરલો હાથ રે લાગ્યો મારા ઘરમાં બિરાજતા શ્રીનાથજી યમુનાજી મહાપ્રભુજી આવો લાવો જીવનમાં ફરી કદી ન મળે લાવો લાવો જીવનમાં ફરી કદી ના મળે આવો લાવો જીવનમાં ફરી કદી ન મળે લાવો લાવો જીવનમાં ફરી કદી ના મળે વારે વારે માનવ દેહ 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 કદી ના મળે વીરો લખ રે વીરો લખ રે 84 નો મારો રે ફરે મને મોહન મળે મારા ઘરમાં બિરાજતા શ્રીનાથજી યમુનાજી મહાપ્રભુજી શ્રીનાથજી બોલો શ્રી યમુનાજી બોલો શ્રીનાથજી બોલો શ્રીનાથજી બોલો શ્રીનાથજી બોલો શ્રી યમુનાજી બોલો શ્રીનાથજી બોલો શ્રી યમુનાજી બોલો શ્રી મહાપ્રભુજીની જય જય બોલો મહાપ્રભુજીની જય જય બોલો શ્રીનાથજી બોલો અરે શ્રી યમુનાજી બોલો શ્રીનાથજી બોલો શ્રી યમુનાજી બોલો શ્રીનાથજી બોલો શ્રીનાથજી બોલો શ્રી રાધા વલ્લભ લાલ કી जल्दी जल्दी बैठ जाइए सभी लोग। શ્રી જક્ષણી અન્નપૂર્ણા કેન્દ્રના આમંત્રણને માન આપી શ્રીમદ ભાગવત કથા જ્ઞાનયજ્ઞ મહોત્સવ પ્રસંગે અત્રે પધારેલ આપના મહેમાનો શ્રી જુગલભાઈ શ્રોફ, જેઓ અખિલ ભારતીય શ્રી હિત રાધાવલ્લભ સમાજના પ્રમુખ છે, ગુજરાત પ્રાંતના શ્રી સુનિલભાઈ શાહ રાંધેજાવાળા સેક્રેટરી શ્રી કલ્પેશભાઈ શાહ કન્વીનર શ્રી રમેશભાઈ શ્રોફ કમિટી મેમ્બર શ્રી રિકેશભાઈ શાહ પાનસરવાળા, શ્રી હેમંતભાઈ મોદી, આપ સર્વેને મારી વિનંતી કે આપ સ્ટેજ ઉપર પધારો, મહારાજશ્રીના આશીર્વાદ લો.
લાલ કી જય. હેલો. ઓમ મંગલમ ઓમકાર મંગલમ ઓમ મંગલમ ઓમકાર મંગલમ ગુરુ મંગલમ ગુરુપાદ મંગલમ ગુરુ મંગલમ ગુરુપાદ મંગલમ ઓમ મંગલમ ઓમકાર મંગલમ ઓમ મંગલમ ઓમકાર મંગલમ ગુરુ મંગલમ ગુરુપાદ મંગલમ ગુરુ મંગલમ ગુરુપાદ મંગલમ હા ગુરુ મંગલમ ગુરુપાદ મંગલમ ગુરુ મંગલમ ગુરુપાદ મંગલમ ગુરુદેવ તુમારી જય જય હો 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 ગુરુદેવ તુમારી જય જય હા ગુરુદેવ તુમારી જય જય હો 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 એવું શ્રી સદગુરુજીનું નામ અમને પ્રાણ પ્યારું છે એવું શ્રી સદગુરુજીનું નામ અમને પ્રાણ પ્યારું છે પ્રાણ પ્યારું છે અમને અતિશય વાલું છે પ્રાણ પ્યારું છે અમને અતિશય વાલું છે એવું શ્રી સદગુરુજીનું નામ અમને પ્રાણ પ્યારું છે એવું શ્રી સદગુરુજીનું નામ અમને પ્રાણ પ્યારું છે કે અમને પ્રાણ પ્યારું છે અમને પ્રાણ પ્યારું શ્રી સદગુરુ ભગવાન કી જય. શ્રી જક્ષણી અન્નપૂર્ણા કેન્દ્રના આમંત્રણને માન આપી આપ સૌ વડીલો સ્નેહીજનો તથા દેશ વિદેશથી અત્રે પધારેલા સૌ સ્વજનોએ અમારી સંસ્થા ઉપર અપાર વિશ્વાસ દર્શાવી શ્રી ભાગવત કથાના માધ્યમથી અપાર પ્રેમ આપ્યો છે તેનો અમો સૌ સેવકોને અતિ આનંદ અને અમારો ઉત્સાહ વધારનારો છે. આપની સેવા સૌજન્યથી અમો હજી વધુ સારી સેવા સગવડો ઊભી કરી શકીશું. આપે બતાવ્યો હૃદયના ભાવરૂપી સહયોગ આ પ્રમાણે છે. ₹25,000 બાબુલાલ જોઈતારામ મોદી સુરત તરફથી, 11,111 વિમળાબેન મહેશભાઈ શાહ મુંબઈ તરફથી, ₹500 કનુભાઈ જીવાભાઈ ચૌધરી ગિયોડ, ₹500 મંગાભાઈ રેવાભાઈ ચૌધરી ગિયોડ, ₹5,001 સુલોચનાબેન જયંતિલાલ શાહ હસ્તે પ્રશાંતભાઈ, ₹25,000 સ્વર્ગીય ચૌધરી મેનાબેન ડાયાભાઈ ઈશ્વરપુરા, ₹2500 વિનોદભાઈ ડી પટેલ કાણિયોલ, ₹200 મહેશભાઈ બેચરભાઈ પ્રજાપતિ કાણિયોલ, ₹200 સ્વર્ગીય ગિરજાબેન નટવરલાલ લાલા, ₹500 સ્વર્ગીય ગિરજાબેન નટવરલાલ લાલા અમદાવાદ, ₹500 સવિતાબેન ચંદ્રકાંત શાહ અમદાવાદ, ₹2,000 લોપાબેન યોગેશભાઈ શાહ અમદાવાદ,
1001 रुपया परमेश्वरी भरत कुमार शाह राणी, 200 रुपया पटेल मणिलाल ईश्वरदास मोतीपुरा, 200 रुपया जयंतीलाल के शाह अहमदाबाद, 1000 रुपया चंद्रवदन राधेश्याम शाह कड़ी, 31,000 रुपया पारुलबेन बिपिनभाई पटेल सरपंच श्री गोता एमना तरफथी आज फोन आव्यो अने हेतलबेन ने एमने सेवा लखाई, खूब खूब आनंद। रुपया 51,000 श्री अर्मिताबेन हितेन्द्रभाई नानूभाई मुंबईवाड़ा, हस्ते श्री हर्षितभाई हितेन्द्रभाई शाह संस्थाना विकास कार्योना काम माटे दान सहयोग रूपे 5,000 रुपया चंपाबेन लक्ष्मीचंद श्रोफ परिवार तरफथी। आप सौ दाताओए छेल्ला 3-4 दिवस में अवारनवार घणी बधी सेवाओं लखाई है। अमे सौ सेवको राधावल्लभ लाल ने, राधा राणी जी ने, माँ जक्षणी ने प्रार्थना करीए छीए कि तेमनी असीम कृपा तमारा सौ ऊपर कायम बनी रहे। जय माताजी। जय माता जी। बोल श्री राधा वल्लभ लाल लाल की जय। परम स्नेही वैष्णव जन, आज श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह ज्ञान यज्ञ के तृतीय दिवस की प्रथम पक्ष की कथा में हम सभी लोगों ने पुरंजन आख्यान तक की कथा का श्रवण किया और यहीं पर विदुर और मैत्रेय जी का संवाद जो है विश्राम लिया। अब द्वितीय पक्ष में हम श्रीमद् भागवत कथा के पंचम स्कंद की कथा प्रारंभ करते हैं। राजा परीक्षित सुखदेव जी महाराज से पूछते हैं कि स्वामी, आपने अभी तक स्वयंभू मनु की 3 पुत्रियां आकुति, देवहूति एवं प्रसूति एवं उनके पुत्र उत्तानपाद के परिवार के बारे में आपने बताया, लेकिन उनका एक और पुत्र था प्रियव्रत, उनके बारे में आपने जानकारी नहीं दी। कुछ कृपया उनकी कथा भी हमें विस्तार से सुनाइए। तब सुखदेव स्वामी ने राजा परीक्षित को प्रियव्रत की कथा सुनाई। देखिए, उत्तानपाद नाम का अर्थ है जिसका अपने कर्मों के द्वारा समाज में ऊंचा पैर है, वो है उत्तानपाद। और प्रियव्रत नाम का अर्थ है जिसने अपने जीवन में सुंदर प्रतिज्ञा ली है। परम स्नेही वैष्णव जनों, हम भक्ति तो बहुत करते हैं, लेकिन भक्ति हम एक दूसरे का अनुसरण करते हुए करते हैं। हम भक्ति में कोई ध्येय निर्धारित नहीं करते हैं। देखिए, मैंने कल आपको बताया था कि भक्ति की 3 धाराएं हैं। पहला है विश्वास, दूसरा है संबंध और तीसरा है समर्पण। हमारी वाणी जी स्वयं कहती है कि अर्चन वंदन अरुदासंतन सख्य और आत्मा समर्पण, जब यह नवलक्षण भक्ति बढ़ाई तब तिन प्रेम लक्षणा पाई। तो जो नवधा भक्ति है, इसमें हम ठाकुर जी की अर्चना और वंदना तक ही करते हैं, लेकिन आगे की भक्तियों का हम कोई अनुसरण नहीं करते। आगे एक भक्ति और आती है सख्य। सख्य मतलब ठाकुर जी को अपना सखा मान लो। वृंदावन के एक संत थे माधवदास जी, उन्होंने ठाकुर जी को अपना सखा मित्र बना लिया और हमेशा यही विचरण जब करते ना, तो हमेशा यही सोचते कि ये ठाकुर जी सखा बन के मेरे साथ चल रहे हैं। तो एक दिन इनके मन में इच्छा हुई कि भाई हमारा ठाकुर वृंदावन में ही थोड़ी रह रहा है, हमारा ठाकुर तो और भी जगह जा रहा है, तो मैं भी अलग अलग जाऊं, तो कभी द्वारिका जाएं जहां ठाकुर जी ने लीला करी है। और ऐसा करते करते एक बार जगन्नाथ जी पहुंच गए। अब माधवदास जी का प्रत्येक दिन का क्या नियम है? माधवदास जी का प्रत्येक दिन का क्या नियम था कि प्रत्येक दिन जगन्नाथपुरी में निकल जाते और आवाज लगाते कि मेरा कन्हैया जो है ना, वो यहीं पर मेरे साथ भ्रमण कर रहा है। कहीं पर वो ठाकुर जी का नाम लेते और भटकते, और कहीं पे भी जिस घर से मधुकरी मिल जाती
पाते और ठाकुर जी का चित्र सामने रखते, कहते ले मेरा भैया मित्र है तू भी खा और मैं भी खाऊं। अब ऐसे करके बिरने लगे। ठाकुर जी उसके स्वभाव पे रीझ गए। अब ठाकुर जी ने एक दिन क्या किया कि ठाकुर जी एक बाल सखा के रूप में आ गए और कहने लगे कि माधवदास मैं तेरा मित्र हूं और मैं भी वृंदावन से ही आया हूं और तेरे साथ साथ भ्रमण करूंगा। अब माधवदास भ्रमण करते करते आज नगर में निकले तो देखा जो उनका मित्र बाल सखा था ना, बोले आज उदास हो गया। बोले क्यों भैया, तू क्यों उदास है, समझ में ना आ रही? तो बोले मैं उदास जा मारे हूं कि जा जगन्नाथपुरी में मेरे को आनंद नहीं आ रहा हूं। बोले क्यों, तो को खाने को रोटी ना मिल रही? बोले नहीं, रोटी तो मिल रही है लेकिन मांगने पे मिलती हैं और हमारा मांगने का स्वभाव नहीं है। जब से वृंदावन छूटा है तब से वृंदावन में तो भैया चोरी करके खाते थे, चोरी करके माखन खाते थे, चोरी करके ही कहीं लड्डू पेड़ा खा लेते थे। अब यहाँ मांगने से मिलती है तो मांगने में वो मजा नहीं आता। तो भगवान से कहते हैं माधवदास भैया चोरी करने की इच्छा है तो तू जाके चोरी कर ले, तेरे को तेरी जैसी इच्छा हो रही है। बोले ना चोरी ऐसा थोड़ी करी जाए, वृंदावन में तो हमारा सखा मंडल था, यहाँ पे तो कोई हमारा मंडल नहीं है। तो माधवदास बोले कि ऐसा कर तू जा और कोई सखा बना ले। बोले कोई दूसरो सखा बनाने की क्या जरूरत है माधवदास, तूने कही थी ना कि मैं तेरो सखा हूं तो तू ही मेरी जो चोरी की जो मंडली है वहां में शामिल है जा। माधवदास जी बोले कि हम तो महात्मा हैं, हम कोई थोड़ी चोरी करेंगे। बोले नाय नाय, जब तूने दोस्त कहो तो मैं तेरे साथ में, देख तू मधुकरी लेखता था, मैं तेरे साथ में पीछे पीछे फिरा। अब मैंने चोरी करने का विचार किया है तो तुझे मेरी मंडली में शामिल होना पड़ेगा, तुझे भी मेरे साथ चोरी करने जाना पड़ेगा। तो माधवदास ने कहा ये तो बुरे फंसे। तो माधवदास बोला कहाँ चोरी करोगे? बोले ये जो राजा है ना, जाके बगीचा में बहुत सुंदर सुंदर कटहल हैं और ये कटहल बड़े मीठे मीठे हैं। कटहल समझ गए ना, सब्जी आती है। तो बोले ये बड़े मीठे मीठे कटहल हैं, जाकी चोरी करके खाएंगे। माधवदास जी बोले कि अरे तू बिल्कुल चिंता मत कर, ये राजा तो मेरा शिष्य है, तू कहे तो सही, मैं तुझे कटहल देख मंगा दूंगा खूब सारे। बोले नाय नाय, मांग के थोड़ी खाना है, चोरी करके खाना है, चोरी करके आनंद ही अलग आवे। तो बोले कब चोरी करेंगे? बोले रात को चोरी करेंगे। अब माधवदास को पकड़ के ठाकुर जी जो बाल सखा के रूप में थे राजा के बगीचे में घुस गए। अब माधवदास तो बगीचे में पहुंचे लेकिन उनका स्वभाव तो जोर से बोलने का। बोले कन्हैया तू बता कहां से चोरी करनी है, कहां से चोरी करनी है? जोर से बोले, सोई माली दौड़ा दौड़ा चला आया। लेकिन अब माली को देखा तो भगवान तो अंतर्ध्यान हो गए। माधवदास जी ने कहा अरे मैं रात को आया हूं। माधवदास भी छुप गए। अब थोड़ी देर बाद कन्हैया फिर से प्रकट हो गए। बोले कहां तू चलोगे? बोले बस मैं यहीं गया हूं। उसके बाद माली तो वापस चला गया जब उसे कोई नहीं मिला। मेरी बात समझ में आ रही है? समझ में आ रही है? जी हाँ। तो माधवदास ने कही अरे कन्हैया तू कहाँ है? बोले धीरे धीरे बोल, कोई सुन ना लेगा। बोले अब माधवदास को पकड़ा और माधवदास से कहा माधवदास तू तो पेड़ पे चढ़ जा, ऊपर से मुझे कटहल फेंकी और मैं लपक लूंगा। अब माधवदास कन्हैया की बात मान के पेड़ पे चढ़ गए, लेकिन माधवदास ने तो कभी जिंदगी में चोरी करी नहीं थी। ऊपर से आवाज लगाई ओरे कन्हैया, ओरे कन्हैया, कौन सा कटहल दूं, जे वाला दूं कि जे वाला दूं? कन्हैया ने कही जाने तो मरवा दियो, फिर इतनी तेजी से बोल रहा है। अब कन्हैया तो अंतर्ध्यान हो गए और माधवदास ऊपर लटके हुए और माली दोबारा से आ गया। अंधेरा देखा तो उसने कहा पहले नीचे उतर। अब बेचारे माधवदास तो भैया साधु संत की वेशभूषा में, कहीं पे कपड़ा हिलत जाए ये आए। तो पहले तो माली ने अंधेरे में देखा नहीं, दो लठ माधवदास की कमर पे मारे और हाथ बांध दियो माधवदास का और माधवदास से कही कि यहीं बंधो दे, अब कल सुबह तुझे राजा के यहाँ लेके जाऊंगा। अब सुबह प्रातः काल की जैसे ही किरण हुई
तो पहले तो माधवदास की कमर दुख रही थी और रस्सी से बांध के माधवदास को पकड़ के ले गए। अब सुबह सुबह जो राजा था ना वो भी वहां से आ रहा था। उसने देखा अरे ये तो हमारे गुरुजी है और हमारे माला ये इसको पकड़ के माली ले जा रहा है। तो माधवदास को देख के बोले अरे गुरुजी आप यहाँ कैसे? और फिर माली की तरफ देख के राजा बोला दुष्ट तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारे गुरुजी को बांध के लेके आने की? माधवदास बोले जा से कछु मत को, ये हमारे कुसंग का हमने गलत दोस्ती कर ली ना वाका प्रभाव है। राजा बोला विस्तार से बताओ। बोले यहाँ नहीं बताएंगे, राज की बात है, चलो घर में चले। माधवदास अपने आश्रम में पहुंचे, पीछे पीछे राजा आया। बोले गुरुजी कुछ समझ में नहीं आई, ये तो यूं कह रहा था आप चोरी करने गए थे। अरे अपने घर में कोई चोरी, मेरा तो सब कुछ आपका ही है ना। बोले नाय नाय जैसे दोस्ती करी ना। फिर माधवदास जी ने पूरी विस्तार से लीला सुनाई तो राजा के आंखों में आंसू आ गए। बोले मेरे रहते हुए मेरे ठाकुर जी को चोरी करनी पड़ रही है। तो पूरा अपना बगीचा राजा ने जगन्नाथ जी के नाम पे लिख दिया। आज भी वो बगीचा जगन्नाथ जी के नाम पे है, जगन्नाथपुरी में जाओ। परम स्नेही वैष्णव जनों, ठाकुर जी से आप कोई भी संबंध स्थापित कर लो। आप वृंदावन में कभी आओ तो राधा वल्लभ मंदिर के बाजू में आनंदी बाई का मंदिर है। ये जो आनंदी बाई थी ना ये ठाकुर जी को अपना बेटा मानती थी। तो इसका इतना प्रेम ठाकुर जी के प्रति कि ठाकुर श्याम सुंदर को अपना बेटा और राधा रानी को बहू कहती थी। रात को 1 बजे 2 बजे उठ जाए, रसोई में पहुंच जाए, हलवा बनाए। लोग कहें बाबरी है गई है, बोले नाय नाय मेरे लाला को भूख लग रही है, मेरी बहू की इच्छा कर रही है, खूब बनाए। साधु संत कोई भी मिल जाता, हरबंश जी के मंदिर में कोई भी शयन करता, उन सबको प्रसाद पवाती तब पाती। एक दिन ये कलकत्ता की तरफ में वहाँ की थी निवासी, वहाँ पर गई तो कलकत्ता में इनको एक स्त्री की बहुत सुंदर साड़ी नजर आई तो उसके पीछे पीछे चल दी। वो स्त्री एक तांगे में बैठ गई तो ये भी एक दूसरे तांगे में पीछे पीछे चली गई और धीरे धीरे वो तांगा जो है ना कलकत्ता की बदनाम बस्ती जो थी जहाँ पर वैश्यालय होते हैं वहाँ पे पहुँचा। तांगे वाले ने कहा बाई जी आप उच्च कुल की हो और ये इलाका अब गलत आ गया है, हमें नहीं जाना चाहिए। बोले तू छोड़ दे, उसके पीछे पीछे चल। और उसके पीछे पीछे गई। अब वैश्या मुड़ मुड़ के देखती है कि अभी तक तो पीछे हमारे मन चले ही आते थे, आज कोई उच्च कुल की बहू भी आ रही है। तो उसको लगा कि शायद इसके घर का कोई बच्चा हमारे यहाँ आता होगा तो हमसे आग्रह करने आ रही होगी। लेकिन ये पीछे पीछे चली और उससे बोली कि अरे बाई रुक जा, अरे बाई रुक जा। जब वो वैश्या रुक गई तो वैश्या से कहा कि सुनो मुझे तुम्हारी साड़ी बहुत पसंद आई। तो वैश्या ने अपना सिर पकड़ लिया। बोले बाई ऐसी भी क्या साड़ी में आ सकती कि तुमने इलाका नहीं देखा, ये इलाका आप जैसी कुल वधुओं हैं उनके आने के लिए उचित नहीं है। बोले नहीं नहीं ये साड़ी मेरे लिए नहीं चाहिए, मेरी बहू के लिए चाहिए। बोले हमने तो ऐसी सास देखी नहीं जो अपनी बहू के लिए साड़ी देखने के लिए वैश्यालय तक आ गई। बोले तेरी बहू का नाम क्या है? बोले मेरी बहू का नाम राधा है। और बोले तेरे बेटे को नाम क्या है? बोले मेरे बेटे को नाम है श्याम सुंदर। जैसे ही वैश्या ने सुना कि बेटे का नाम श्याम सुंदर और बेटी का नाम राधा, तुरंत झरझर करके आंसू बहने लगे और कहने लगे माता जी मैं समझ गई, देखो ये हमने क्रय नहीं करी है, हमारे किसी प्रेमी ने लाके दी थी, मैं जरूर से व्यवस्था करूंगी। और वो वैश्या फिर वैसी ही साड़ी की पोशाक बना के जो ललता जो वहां पर है मंदिर उसी के लिए वहां से ठाकुर जी के लिए बना के आई। तो कहने का तात्पर्य यह है कि आप ठाकुर जी से कोई भी संबंध स्थापित कर लो। अब ये जो प्रियवत है राजा, इसने अपने जीवन में प्रतिज्ञा ले ली। क्या प्रतिज्ञा ले ली? इसकी सूर्यदेव से ठन गई कि ये सूर्यदेव रात्रि के समय चले जाते हैं, अंधकार हो जाता है, सारी संसार में दुष्प्रवृत्तियां बढ़ती अंधेरे में, मैं अंधेरा नहीं होने दूंगा। उन्होंने खूब जोर से तपस्या करी और सूर्य के समान एक रथ प्राप्त किया।
परम स्नेही वैष्णव जनों, हम अपने जीवन में, मैंने आज की बात प्रारंभ करी थी कि हम अपने जीवन में कोई भी प्रतिज्ञा नहीं लेते, कोई भी व्रत धारण नहीं करते। देखिए, एक बार मैं कथा कर रहा था तो कथा में मैंने सुना कि एक व्यक्ति था, उसने कहा कि महाराज इस कथा मंडप में जितने भी लोग आए हैं ना, वो कुछ ना कुछ सहयोग कर रहे हैं, वो अपना कुछ ना कुछ धन अर्पण कर रहे हैं, लेकिन मैं भी कुछ अर्पण करना चाहता हूं, लेकिन मेरे पास धन नहीं है। तो मैंने पूछा क्या अर्पण करोगे? बोले मैं अपनी बुराइयां यहां अर्पण करता हूं, मैं सिगरेट का शौकीन हूं, व्यसनों का शौकीन हूं। यदि ये भागवत जी की पोथी हमारे घर में आ जाए तो हम ये सब कुछ छोड़ देंगे, ये व्यसन यही कथा मंडप में छोड़ देंगे। परम स्नेही वैष्णव जनों, आप जब कथा में बैठें तो आप क्या छोड़ने को तैयार हैं, भले वो धन के रूप में है या मन में कोई कुविचार है, वो भी आप यहां आके दान कर सकते हैं। इन्हीं प्रियव्रत के वंश में आगे चल के उनके पुत्र हुए, नाम था आग्निद्र, आग्निद्र के बेटे हुए नाभि, और नाभि के बेटे हैं ऋषभदेव। परम स्नेही वैष्णव जन, देखिए, जो जैनों के प्रथम तीर्थकर हैं वो भी भगवान ऋषभदेव के अवतार हैं। जैन धर्म कोई हिंदू धर्म से अलग नहीं है, उनकी केवल पूजा पद्धति अलग है। तीर्थकर कहते हैं जिनके चरण घर में रखने से हमारा घर तीर्थ के समान हो जाए, उनको हम तीर्थकर कहते हैं। तो ये जो ऋषभदेव जी हैं, ये सारे संसार के सम्राट हैं, सातों दीपों के स्वामी हैं, और इनके 100 पुत्र थे। अब जो ऋषभदेव जी हैं, ये जो ऋषभदेव जी हैं, इनका प्रत्येक दिन का नियम था कि ये प्रत्येक दिन अपनी जब राज्यसभा से लौट के आते थे ना, तो अपने घर में अपनी एक गृहस्थी की सभा लगाते थे, अपने 100 पुत्र को अपने सामने बैठाते और उनको व्यवस्थित जो जीवन का संचालन करने के लिए जरूरी है वैसा सत्संग प्रत्येक दिन सुनाते थे। आज ऋषभदेव जी अपने 100 पुत्रों के साथ में बैठे हैं, और ऋषभदेव जी ने अपने पुत्रों से पूछा कि पुत्रों, मैं ये जानना चाहता हूं, मैंने इतना आपको पढ़ाया लिखाया समझाया, ये जीवन हमें किस लिए मिला है, कृपया करके मुझे बताओ। सभी पुत्र कहने लगे कि देखो पिताजी, ये जीवन हमको क्यों मिला है। बोले ये जीवन हमको भोगने के लिए किया है। कोई बच्चे ने बोला राज कार्य चलाने के लिए, किसी ने कहा भोजन करने के लिए, किसी ने कहा आमोद प्रमोद के लिए, किसी ने विलासिता का साधन जीवन बताया। ऋषभदेव जी की आंखें सजल रही, अपने पुत्रों से कहते हैं, नायम देहो देहो भांजात्रा लोके कष्टान कामान अहरते विंग बुझाए तपो दिव्य पुत्र को क्या ये सत्वम शुद्धेस्य दस्मात ब्रह्म सौख्य नवंतम। यह शरीर केवल हमें हंसने नाचने गाने और विलास के लिए नहीं मिला। इस शरीर से पुत्रों हमें तपस्या करनी चाहिए, हमें साधुओं का संग करना चाहिए, हमें सत्संग की महिमा को समझना चाहिए। ऋषभदेव जी बार बार समझाते हैं कि हमको साधुओं का संग करना चाहिए। परम स्नेही वैष्णव जनों, साधु कपड़े का नाम नहीं है कि गेरुआ वस्त्र पहन रखे हो, जटाएं धारण हो, नहीं, साधु स्वभाव का नाम है। कहते हैं साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए और सार सार को गही करे और थोता दे उड़ाए। एक बार एक बच्चा था और उसने एक विद्यालय में एडमिशन लिया। अब वहां पे जो गुरुजी थे ना, उनको सेवा कराने की बड़ी आदत थी। अब इस बच्चे को इसके माता पिता ने कहा कि बेटा जाके गुरुजनों की खूब सेवा करना। अब बेटा जो है ना, वो गुरुजी की सेवा करने लगा। पूरे दिन कभी पानी भरे, कभी आश्रम की सफाई करे, कभी बाजार से सामान लेके आए। गुरुजी ने देखा कि ये बच्चा जो है ये बड़ा सेवा भावी है, तो रात्रि को अपने कक्ष में बुलाया और बोले बेटा थोड़ी सी चरण सेवा कर दो, हमारी पैर दबा दो।
अब गुरुजी के बच्चा पैर दबाने लगा। रात को पैर दबाते दबाते 10 बज गए। बच्चे ने सोचा कि अब गुरुजी सो गए होंगे, तो जैसे ही उठ के जाने लगा, गुरुजी पूछते हैं, सुनो तुम आश्रम में नए आए हो, अपने परिवार के बारे में बताओ। बोले बताओ तुम्हारे परिवार में कौन कौन है? बोले माता पिता हैं। और कौन है? बोले 4 भाई हैं। बोले अच्छा अच्छा, अब पैर दबाओ। बच्चा बेचारा दोबारा से पैर दबाने लगा। अब 11 बज गए, 1 घंटा हो गया। अब बच्चा ने सोचा कि अब मैं जाके थक गया हूं, मैं सो जाता हूं। जैसे ही उठने लगा, गुरुजी तुरंत उठ गए। अच्छा तो 4 भाई हैं, तो किसी की शादी भी वादी भी हो गई होगी? बोले हाँ गुरुजी, 2 भाइयों की शादी हो गई। अच्छा अच्छा, पैर दबाओ। फिर दोबारा से पैर दबाने लगे। अब 12 बज गए। बच्चा बोला कि 3-4 बजे फिर से उठना है, अब जाता हूं। जैसे ही जाने लगा, गुरुजी फिर उठ गए। बोले अच्छा, यदि बच्चों की शादी हो गई है 2 भाइयों की, तो उनके बाल बच्चे भी होंगे? हाँ हाँ, दोनों को एक एक बच्चा है। अच्छा अच्छा, पैर दबाओ। अब 2 बज गए रात को। अब बच्चा फिर उठ के, अब मैं 2 घंटे सो लेता हूं। बच्चा जैसे ही उठा, गुरुजी बोले अच्छा तुमने बताया था तुम्हारे कितने भाई थे? बोले गुरुजी 3। बोले 3? हमें मूर्ख बना रहे हो? रात को तो कह रहे थे कि तुम 4 भाई हो। बोले नहीं, आपके पैर दबाते रहे ना, तो हमारे भाइयों का एक भाई तो स्वर्गीय सिधार जाएगा। परम स्नेही वैष्णव जनों, साधु ऐसा होता है जो आपके काम को साधे, जो व्यक्तिगत क्षुधा पूर्ति के लिए, पेट भरने के लिए आपको शिक्षण दे, उसे साधु नहीं कहते। साधु किसी वेशभूषा का नाम नहीं है, साधु एक स्वभाव का नाम है। अब ऋषभ देव जी की ये बात सुन के उनके 89 पुत्र जो हैं वो तुरंत विरक्त हो गए। इनमें सबसे बड़े पुत्र हैं भरत। भरत को राजगद्दी सौंपी और ऋषभ देव जी स्वयं जंगल में चले गए। जंगल में जाके जब बैठे, तब लोगों को पता चला कि बहुत बड़ा संत आया है। लोग दौड़े दौड़े चले आए, और जब लोग दौड़े दौड़े चले आए तो संसार के लोगों को चमत्कार की आशा लगी रहती है। अभी आप लोग यहाँ साथ में बैठे हो, और अभी आपको खबर पड़े ना कि दशैला गांव में कोई साधु बाबा आया है और उसके हाथ जिसको भी लग जाता है उसको आशीर्वाद फल जाता है, तो कथा छोड़ के भाग जाओगे? कथा की महत्ता को नहीं समझोगे, चमत्कार की तरफ भागोगे, क्योंकि चमत्कार को सब नमस्कार करते हैं। परम स्नेही वैष्णव जनों, तो ऋषभ देव जी का चमत्कार जान के सब लोग दौड़े चले आए। कोई कहे कि हमारी बहू के बच्चा कब होगा, कोई कहे व्यापार में तरक्की क्या होगी। अब ऋषभ देव जी ये सब सुन सुन के थक गए, तो उन्होंने क्या किया कि जो अपना व्यवस्थित वेश था ना, वो त्याग दिया। अब लंगोटी में पड़े रहे, नहाए धोए नहीं, और क्या करें, कभी भोजन मुंह में रख लें, मुंह पे ढेला रख लिया मिट्टी का। सब लोगों ने कहा देखो तो सही, ये बाबा की बुद्धि भ्रष्ट रह गई है। 4 दिन मान दिया और देखो सिर पे चढ़ के बैठा है, कैसा अधर्म का आचरण कर रहा है। सब चले गए। ऋषभ देव जी ने कहा बड़ी प्रसन्नता की बात है, हम तो साधु हैं, हमें चमत्कारों की क्या वो आशा रखें। हमको तो केवल एक ही चीज चाहिए कि भजन करने के लिए समय और माध्यम मिल जाए। अब इधर जो ऋषभ देव जी के पुत्र भरत थे, वो भरत जो हैं उन्होंने विचार किया कि मैंने कितने उच्च कुल में जन्म लिया, मेरे माता पिता ने मुझे कितने सुंदर शिक्षण दिया, अब मुझे भी जंगल में चलना चाहिए। उन्होंने भी अपने पुत्र सुमति को गद्दी पे बिठाया और जंगल में चले गए। नेपाल में जहाँ से गंडकी नदी निकलती है, उस स्थान का नाम है दामोदर कुंड, वहाँ रह के निवास करने लगे। अब इस दामोदर कुंड की खासियत क्या है कि शालिग्राम भगवान वहीं से प्रकट होते हैं। यदि कोई तुलसी का पौधा दामोदर कुंड में ले जाए, तो जो असली शालिग्राम जी हैं वो जो नदी की तलहटी है उसमें से निकलते हैं और उस गमले से चिपक जाते हैं। यही शालिग्राम की सच्ची पहचान होती है। तो भरत जी ने नियम बनाया
कि वो कई कई लोग ऐसे होते हैं कि वो नदी में जाकर और आधा आधा पानी में खड़े होके जो ठाकुर जी के नाम की संध्या करते हैं, वंदन करते हैं, इससे मंत्र सिद्धि हो जाती है। तो भरत जी ने नियम बनाया कि वो गंडकी नदी में खड़े होके भजन करते थे। तो अब गंडकी नदी में एक दिन भजन कर रहे थे तो इन्होंने क्या देखा कि एक गर्भवती हिरनी दौड़ी चली आ रही है नदी के किनारे और उसके पीछे एक शेर आया। शेर के भय से हिरनी ने नदी में छलांग लगा दी और शेर ने बहुत जोर से दहाड़ मारी तो इसको प्रसव वायु वेग आया, इसके बच्चे का भी वहीं जन्म हो गया। प्रसव वायु वेग के कारण हिरणी की तो मृत्यु हो गई और जो हिरण का छोटा सा बच्चा जो नदी में पैदा हुआ वो बहने लगा। हिरण को देख के जो भरत थे उनके हृदय में करुणा आ गई, इसे मैंने नहीं बचाया तो ये मर जाएगा। उसको उठा ले आए, कांप रहा था, अग्नि जलाई, उसको ग्रीष्म का आनंद दिया, उसके पश्चात उसकी सेवा करने लगे। अब आप कहोगे कि भाई इसमें भरत ने गलत क्या किया? भरत का तो साधु स्वभाव है और साधु का तो काम है बहते हुए को, डूबते हुए को किनारे पर लगाना। लेकिन भरत से यहाँ गलती हो गई, जो उन्हें 2-4 दिन उस हिरण का रक्षण करना चाहिए था, फिर उसको उसके झुंड में कहीं छोड़ आते। लेकिन अब हिरण के बच्चे में आसक्ति हो गई। अब हिरण का बच्चा इनके आसपास घूमे और आसपास घूमते हुए ये भी उसके लिए कहीं हरी घास काट के लेके आए। अब जो पूरे दिन 20-20 घंटे जो भजन किया करते थे, अब वो 2 घंटे भी भजन नहीं करते थे। अब वो हिरण का बच्चा कहीं शेर ना खा ले, कोई हिंसक जानवर के पास ना चले जाए, तो उसके पीछे पीछे घूमे। अब ये जो भरत हैं सारे दुनिया का साम्राज्य छोड़ के आए थे, लेकिन एक हिरण की आसक्ति में फंस गए। परम स्नेही वैष्णव जनों, यूं कहते हैं कि वैराग्य व्यक्ति ले लेता है लेकिन उसका मन जो है ना वो घर गृहस्थी में होता है। बहुत से साधु संतों को देखा, आप वृंदावन में आओ ना तो वृंदावन में बहुत सारे साधुओं ने अपने आश्रम बना रखे हैं। मैं किसी की निंदा तो नहीं करता, लेकिन आप आश्रमों में जाओगे ना तो 5 स्टार होटल को फेल कर दें, ऐसे एसी लग रहे हैं, ऐसे फर्स्ट क्लास नाम है आश्रम का और